حدیث میں آتا ہے، اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ کو ایک اور تحفہ دے رہا ہوں، بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ، چنگاری۔ آگ جلائے نا آگ، اس میں سے ایسے ایک چھوٹی سی چنگاری اوپر جاتی اور بجھ جاتی ہے۔ 2018 آیا، پلکوں میں گزر گیا، 19 آیا اور ایک مہینہ بھی گزر گیا، اور باقی 11 مہینے رہ گئے، اور اس میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت، دنوں کی برکت، زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا، تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو، سنیں غور سے۔ عمر صحت مند چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں یا مختصر؟ وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ، ان کا مزاج تھا کہ جب خط ان کا مرید ان کو لکھتا تھا تو اسی خط کی بیک پہ مختصر سا جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے۔ اب ذرا جواب سنیں، سوال کہ مرشد آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات، 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک، 1.25 لاکھ دفعہ استغفار، 10 پارے قرآن کے، 100 نفل، یہ معمولات۔ وہ پرائمری کے ٹیچر بھی تھے، مسجد میں 5 وقت کے امام بھی تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، مفتی تھے، لوگوں کو مسائل بھی بتاتے تھے، بال بچے بہت سارے تھے، ان کی روزی روزگار کے لیے محنت بھی کرتے تھے، اسکول میں وقت بھی دیتے تھے، اور یہ معمولات بھی کرتے تھے۔ ایک عقل انسانی تو نہیں مانتی کہ یہ کیا ہے، لیکن رب جس کے وقت میں برکت دے دے، اللہ کے لیے کون سی دیر ہے۔ ہم تو اپنے وقت میں برکت ہی چھنوا بیٹھے، ہمارے وقتوں میں برکت ہی ختم، ہماری زندگی میں برکت ہی ختم، ہمارے لمحوں اور ساعتوں میں برکت ہی ختم ہو گئی، ہم تو برکت چھنوا بیٹھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت، اس کے وقت میں برکت، اس کی صحت میں برکت، ہر وقت مریض ہے بیچارہ، ایک بیماری سے نکلا دوسری، دوسری سے نکلا تیسری، ایک روگ سے نکلا دوسری، دوسرے روگ سے نکلا تیسری، ہر پل کر روگی ہی روگی ہے۔ گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، کبھی حکیم کی دوائیں، کبھی ڈاکٹر کی دوائیں، کبھی ادھر کی دوائیں۔ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، لا علاج بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، وقت اور صحت میں برکت چاہتے ہیں، زندگی اور لمحوں میں برکت چاہتے ہیں، تو اپنی نماز کی پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری رکعت میں علم تری کیف پڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں۔ نماز کی پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور نماز کی دوسری رکعت میں سورت علم تری کیف فیل، یہ پڑھیں اور اللہ کی قدرت اور رحمت دیکھیں اور اللہ کا فضل اور کرم دیکھیں۔ اپنی نماز کی رکعتوں میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر نہیں، اگر انفرادی کوئی نماز ہے وہ سنت ہے، وہ خدا نہ خواستہ فرض قضا ہو گئے ہیں، جماعت چوک گئی ہے نہ چاہتے ہوئے، آپ کے کوئی بھی نماز ہے، سنتیں ہیں، آپ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فیل یہ پڑھیں۔ برکتوں کے اللہ دروازے کھولتا ہے اور رزق کی برکت ہوتی ہے، انوکھی برکت ہوتی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرا 1 کروڑ ایسے بن جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، کروڑ ایسے بن جاتا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں ایسے بن جاتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے بن گیا۔ اللہ نے وہ برکت کے خزانے مجھے دیے ہیں۔ اللہ سے ایک چیز مانگا کریں، اللہ آج جو تو نے مجھے برکت کا ذرہ دیا ہے، اللہ میری نسلوں تک رکھنا، چھین نہ لینا۔ ہاں اللہ مجھے اگر تو نے برکت کا ذرہ دیا ہے، اللہ یہ مجھے نسلوں تک دینا، اللہ مجھ سے چھین نہ لینا۔ تو
बरकतों के दरवाजे अल्लाह खुलवा दे, लाइलाज बीमारियों से निजात दे दे, वक्त में बरकत, जिंदगी में बरकत, सांसों में बरकत, सेहत में बरकत, दौलत में बरकत, पैसे में बरकत, नस्लों में बरकत। बरकत कभी खत्म नहीं होती, कसरत खत्म हो जाती है। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 7, 10, 11। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1, कोई 2। अल्लाह ने आंखों से दिखाया है कि बकरी में बरकत है। उसकी वजह यह है कि बकरी में हलाल है और बरकत है, और कुत्ते में कसरत है और हराम है। अल्लाह कुत्तों को खत्म करके दिखाता है, अल्लाह हलाल को बढ़ा के आंखों से दिखाता है। पहली रकत में सूरत अलम नशरा और दूसरी रकत में सूरत फील। कमाल चीज है। रिस्क में बरकत और सेहत में बरकत। कितने लोग हैं मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने जब से पढ़ना शुरू किया, लाइलाज बीमारियां खुद हमें छोड़ गई, छोड़ जाती हैं, डर जाती हैं। इस वजीफे में इतनी ताकत, इतनी तासीर और इतनी कुव्वत है। पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील। क्या कमाल है इसमें, क्या तासीर है। मामूल बनाएंगे और इससे एक अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है। अगर मैं इसके वाकयात बताना शुरू कर दूं, मेरे पास बेबहा वाकयात हैं। अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है, दिल की दुनिया आबाद होती है, मन की दुनिया आबाद होती है, जज्बों की दुनिया आबाद होती है और जिंदगी शाद होती है। अनोखी रूहानी दुनिया, अनोखा रूहानी राज शुरू होता है, और इसके अंदर अल्लाह पाक इस बंदे को अपने खासाने खास में शामिल करता है। इस बंदे को एक तासीर मिलती है और एक तवज्जो मिलती है। फिर एक नहीं, मैंने कई मुहद्दिसीन अकाबिरीन उलमा की जिंदगियों के वाकयात में यह बात पढ़ी, सुनी। कई बूढ़े बुजुर्गों की जिंदगी में मिलने गया तो मैंने उनसे कहा, जी पहली रकात में अगर अलम नशरा, दूसरी रकात में अलम तरा कैफा पढ़ ली जाए, इसका कोई फायदा आपकी नजर से गुजरा? एक बहुत पुराने आलिम थे, दारुल उलूम कबीर वाला से फारिग थे, पुराने बाबा जी थे। और मुझे एक दफा मिले, मुझे अजीब बात कही। हमारे यहां कोट लखपत है लाहौर में, उसके आगे एक गांव में मैं गया। हमारे एक बाबा जी हैं अब्दुल मजीद साहब, कैंची के साथ, उनके घर गया, उनके साथ मिले बाबा जी। मुझे कहने लगे, जी वो मेरे मुर्शिद आ रहे हैं तो ये मिलने आए। पता चला तो मैंने ये बात छेड़ दी। मैंने कहा, आपको कोई आज तक कोई इसका फायदा सुना? कहने लगे, जब हमें सबक याद नहीं होता था और हम भूल जाते थे, हमारे उस्ताद कहते थे तुम नमाज में ये पढ़ा करो, नवाफिल में, पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी में अलम तरा कैफा। और कहा हमें सबक याद हो जाता था और हम हर चीज पढ़ लेते थे, और इम्तहान के दिनों में हम जब अच्छे नंबरों में पास होना चाहते थे, हम यही वजीफा पढ़ते थे। अच्छे नंबरों में हम पास अगर होना चाहते थे तो हम यही वजीफा पढ़ते थे कि पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा। कौन सा मुश्किल है, कौन सा मुश्किल है। रब्बे तौबा की कसम है, तस्बीह खाने के मिंबर पर बैठ, जिसने पागल हो के पढ़ा हो और उसको न मिला हो। अली करमल्लाहु वजह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया कि अमीर अल मोमिनीन, कर्जे बहुत ज्यादा है और परेशानियां बहुत ज्यादा है। मैंने अभी पहले आपसे अर्ज किया है, दुनिया के मोती मिलेंगे तो इस दर से मिलेंगे, आखिरत के मोती मिलेंगे तो इस दर से मिलेंगे। हमें दुनिया आखिरत के दोनों मोती जब भी मिलेंगे इस दर से मिलेंगे। कर्जों की दरखास्त, फरियाद अर्ज की कि कर्जे हैं, बोझ है, फक्र है, गुर्बत तंगदस्ती है, आसानियां खत्म हो गई हैं। हुजूर निगाह फरमाएं, दुआ फरमाएं। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। कोई दुआ फरमाए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने
उन्हें जो दुआ फरमाई उस दुआ को मैं खुद साल हर साल से बता रहा हूं और मैं खुद पढ़ रहा हूं। मैंने जिसको बताया कर्जे उतर गए। ये मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे ऊपर एहसान है। ये मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे ऊपर एहसान है जो सदियों नहीं चुका सकते। उनका एहसान है, उनका एहसान है। तो क्या फरमाया, अब गौर से सुने। आपने उसे बिठाया, उसे तसल्ली दी और तसल्ली देने के फरमाया कि मैं एक दफा अपने हबीब हुजूर कमली वाली की बारगाह में बैठा था। एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर हो के अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फक्र और गुर्बत ने मुझे घेर लिया है, तंग दस्तियों ने मेरी जिंदगी को तंग कर दिया। मफहूम है, अपना गम सुनाया, अपना दर्द सुनाया। अब जो मेरे हुजूर आका ने जो उसको बताया था, हज़रत अली फरमाते हैं, साइल मैं तुझे वही बताता हूं और तू वो कर ले, और जब तू वो करेगा तेरी सब मुश्किलें आसान। मुझे सहल हो गई मंज़लें, मुझे सहल हो गई मंज़लें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। लोगों, तुम्हारे चराग राहों के बुझ जाते हैं। जब से उनका हाथ मेरे हाथ में आया है, मेरी तो राहों के चराग भी नहीं बुझते। मैं तो खिज़ां में भी बाहर में रहता हूं। सारी दुनिया में क्राइसिस हैं, सारी दुनिया में परेशानी है, रिस्क बंद, कारोबार बंद, नौकरियां खत्म हैं, लेकिन मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई उलझन नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। हर वक्त जो खिज़ां थी, जहां हाथ डालता था हर चीज मिट्टी थी, कदम आगे बढ़ाता था गिरता पीछे था। दुश्मन लोग थे मेरे, मसाइल मुश्किलात उलझनी मेरे गले का तौक थी। जंजीरों में बंधा हुआ वो जादू की बंदिशें हैं, वो दुश्मन की हैं, वो हासिद के हसद की हैं, या मेरे गुनाहों की हैं, या तकदीर का निजाम है। खिज़ां के रुख भी बदल गए। जो खिज़ां मेरे सामने आई थी उसके रुख भी बदल गए। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। अब उसे क्या फरमाया आपने, अब जरा गौर से सुनो। हस्तियों के मोती हैं और वो मसनून दुआएं हैं और वो मसनून अमाल हैं और ऐसी दुआएं हैं जो जिनके साथ सनद है, जिनके साथ रिवायत हैं, जो सही हदीस से साबित हैं। तस्बीह खाने का मिंबर शिरक नहीं देता, तस्बीह खाने का मिंबर बिदअत नहीं देता, तस्बीह खाने का मिंबर ऐसी बातें नहीं बताता जिसकी बुनियाद ना हो, जिसके पीछे सनद ना हो, कोई रेफरेंस हवाला ना हो। नहीं नहीं, व्हाट्सएप और फेसबुक पे अकाबिर पर एतमाद एक पेज है, उसको लिखेंगे, मेरे हर वजीफे की सनद, हर वजीफे का हवाला, हर रिवायत की सनद, हर बात का हवाला इंशाल्लाह आपको मिलेगा। आपका दिल ठंडा हो जाएगा। अब क्या फरमाया अज़ाली ने उस साइल को, उस मंगते को, उस भिखारी को? फरमाया तो पढ़, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवा। इस दुआ की अगर थोड़ी सी तवज्जो आप ले लें, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका, अल्लाह मेरी हलाल से इतनी किफायत कर, इतना दे, इतना दे। थोड़ा ना, थोड़ी सी किफायत नहीं होती। लफ्ज किफायत से आप गौर, लफ्ज किफायत को गौर से सुने। अल्लाहुम्मा कफ़िनी, अल्लाह मेरी हलाल से किफायत कर दे, मुझे हलाल इतना दे, इतना दे, इतना दे, मेरी नजर किसी पे ना जाए। एक बंदा 5 मरले की गाड़ी पे जा रहा हो और उसे इस जो है 1.25 मरले की गाड़ी नजर आए, उसे झांक झांक के देखेगा? देखेगा? एक बंदा बहुत बड़ी गाड़ी पे जा रहा हो, हाथी पे जा रहा हो, हाथी जितनी गाड़ी हो, धप धप करता हुआ गाड़ी पे जाए, और एक छोटी सी गाड़ी हो जिसका सलेंसर भी टूटा हुआ, जिसका टायर भी हिल रहा, जिसके दाएं बाएं से खिड़कियां भी खुद हारन बनी हुई हैं,
उस गाड़ी को झांक झांक के देखेगा? वो कहेगा मेरी गाड़ी अपनी इतनी है। इसी कहते हैं किफायत, गाड़ी ने उसकी किफायत कर दी, झांक के देखने की जरूरत नहीं है। या आजिजी के साथ या तकब्बुर के साथ वो जा रहा है। बड़ी गाड़ी में बैठ के अगर आजिजी आ जाए बड़ा मुश्किल है। मैंने इसको बैठ के भी देखा है, आजमा के भी देखा है। आजिजी आ जाए, अपने आप को बंदा संभाल ले बड़ी सवारी में बैठ के, बड़ा मुश्किल है, लेकिन संभालने वाले संभाल लेते हैं। अल्लाहुम्मा कफीनी बिहलालिका, ऐ मौला मेरी किफायत कर, और इतनी किफायत कर पर कर हलाल से। ऐसा माल जो मशकूक हो, मेरी नस्लों में नहीं रहेगा। ऐसा माल जिसके पीछे कोई दूसरी कहानी हो। अल्लाह मेरी नस्लों में चैन, सुकून, राहत, रहमत, इज्जत, बरकत, वकार, शान शौकत कभी जरिया बन ही नहीं सकता, कभी बन ही नहीं सकता। अल्लाहुम्मा कफीनी बिहलालिका, मौला मेरी किफायत कर और इतनी कर हलाल से। अब आगे सुन, अल्लाहुम्मा कफीनी बिहलालिका अन हरामिका, हराम नहीं। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 6, 7, 8, 9, 10। बकरी कितने बच्चे देती है? 1 या? अल्लाहुम्मा कफीनी बिहलालिका अन हरामिका, हाँ हराम नहीं। कुत्ती 5 से 7। मेरी जिंदगी में आज तक मैंने सड़क के किनारे बकरी और बकरी का बच्चा मारा नहीं देखा, कुत्ते बेबहा मरे देखे। एक दम मैं सड़क के किनारे जा रहा था, मैंने कुत्ते गिनने शुरू कर दिए, आखिर गिनना छोड़ दिए मैंने, कुत्ते गिनने शुरू कर दिए, आखिर मैंने गिनना छोड़ दिया। अल्लाहुम्मा कफीनी बिहलालिका अन हरामिका, वाह 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 अली, सुभान अल्लाह। इन हस्तियों का शुक्रिया, हमें मोती क्या देकर गए और हमारे मसाइल हल करा गए। वअगननी बिफज़लिका, अल्लाह मुझे पता है जिसको जो गनी होता है होता तेरे फजल से है। हाँ मेहनत शर्त है। ये फकीर की बात जरा गौर से सुनिएगा। जो भी जिसको मिला है उसकी रहमत और फजल से मिला। और मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, मेहनत शर्त है, मेहनत पे फैसले शर्त नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेहनत शर्त है। मैं आपको नहीं कहता, आपको नहीं कहता। बस नबी शरीफ में कुछ लोग बैठे थे, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कौन हो? कहा नहनु मुतवक्किलीन। दुर्रा उठाया, रखा 3-4 चेल कोंडा हेक कर देता कि चलो और जाके रोजी करो और मेहनत करो और जाके जान मारो और मेहनत करने के बाद कहो कि अल्लाह अब तू अता कर, तेरी तकसीम। मेहनत करो। तस्बीह खाना जंगल का राही नहीं बनाता। तस्बीह खाना एक जगह बैठे और दिन रात चिले करते रहे नहीं। घर भी, जिंदगी भी, माशरा भी, वालिदैन भी, दफ्तर, दुकान, तमाम निजाम। तस्बीह खाना एक मंजिल देता है, एक रास्ता देता है। वो अगननी, मौला मुझे गनी कर दे बेफज़लिका। ये बड़ा राज है। और अगर किसी को समझ आ जाए, मेहनत शर्त है, पर मेहनत से आज तक आपने किसी को मालदार होते नहीं देखा। अगर मेहनत मालदार होने का जरिया होती तो जितनी मेहनत करने वाला होता उतना मालदार ज्यादा होता। हड्डियां घिस गई मेहनत करते करते। मैंने 4-4 नस्लों को आंखों से देखा, आज भी गरीब हैं, आज भी फकीर हैं, आज भी तंग दस्त हैं। मेरी 4 नस्लें तो मेरे सामने हैं। मैंने उनके बूढ़े परदादा को देखा था गुर्बत में, फिर दादा को देखा गुर्बत में, फिर वालिद को देखा गुर्बत में, अब उनको देखा गुर्बत सफेद पोशी के अंदर। मेहनत शर्त है। मैं आज आले रसूल का पैगाम दे रहा हूं आपको, मोहम्मद आले मोहम्मद के तोहफे, नेमते और मोती दे रहा हूं। मेहनत शर्त है, पर मेहनत से कोई मालदार हो गया हो। यह बात मेरे कमली वाले की जुबान से हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु फरमा रहे हैं और इंसानियत को एक पैगाम दे रहे हैं
کہ یاد رکھ وقت جو لگتا ہے, جو رنگ لگتا ہے, وہ کسی دعا سے لگتا ہے, وہ نصیب اور مقدر سے لگتا ہے. تو کہے محنت سے وقت لگ جاتے ہیں, یہ تیری کوتاہی ہے, یہ تیری سوچ کی کمی اور نادانی ہے. وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ, بولا مجھے غنی کر, پر مجھے پتہ ہے تیرے فضل سے میں غنی ہوگا, تیری رحمت سے, تیری ایک نظر سے وہ جس پہ ڈال دے. یہاں لاہور میں ایک مالداروں کی سوسائٹی ہے, میں اسے مالداروں کی بستی کہتا ہوں. مجھے پرانی بات یاد ہے, کہتا ہے میں تھالی کے اوپر بسکٹ بیچتا تھا, 1 آنے کے 2, 1 آنے کے 3, 1 آنے کے 4 بسکٹ بیچتا تھا. نہایت غریب تھا. رب نے میرا ہاتھ پکڑا, وقت لگا, میں جس صوفے پہ بیٹھا تھا, بڑا صوفہ تھا, اس کے بڑے تھے, مجھ سے کہنے لگا آج جس صوفے کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, اس صوفے کے اوپر جتنے پترے لگے ہوئے ہیں, جتنا اس کے اوپر, یہ سارا سونا ہے. اور میں نے غور سے دیکھا تو وہ سونا تھا. اور میرا گمان ہے, ایسے اندازہ ہے, کیونکہ میں حکیم تولے ماشے, ہم رتیوں کو تولتے ہیں, دواؤں کو, میرے خیال میں کچھ 1.5 کلو ایک صوفے پہ سونا تھا, کم و بیش اندازہ. اور صوفوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں. اغننی پہ فضل کا, اور اگلا لفظ سنے, دعا بھی پوری, مقصد بھی پورا, اور کام بھی ہو گیا. امن سوا سخیا کا, مجھے در در کا بھکاری نہ بنانا, کسی کا محتاج نہ بنانا, اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا. کسی کا محتاج, کسی کا منگتا, کسی در در کا بھکاری نہ بنانا. فرمائے جا یہ دعا پڑھ. اللہ اکبر. غزالی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا چاہ یہ دعا پڑھ, اللہم اکفنی بحلالک. کبھی جاب, کبھی نوکری, کبھی نہ مانگنا, کہنا مولا رزق کے حلال کے دروازے کھول, چاہے وہ جھاڑو دینے میں ہے, چاہے وہ اعلیٰ کرسی میں ہے, چاہے وہ وزارت میں ہے, چاہے وہ فقر میں ہے, مولا رزق کے حلال پر برکت والے دروازے کھول. یہ پیغام ہے, یہ پیغام ہے علی کا, حسنین کے بابا کا یہ پیغام ہے, امام حسن کے والد کا, امام حسین کے والد کا, اور محسن کے والد کا یہ پیغام ہے. قرضوں سے نجات کے لیے, فائنانشلی حالات کے کرائسس اور زندگی کی مشکلات کے لیے, اور جب سب کچھ لٹ چکا اس کے لیے, اس دعا کو آپ صرف 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیں, بس معمول بنا لیں, صرف 7 دفعہ صبح شام. اور پھر اگر کوئی دیوانہ ہے تو 1 سال پھر اس دعا کو پڑھ کے دیکھے, صرف 1 سال, بس 1 سال 7 دفعہ پڑھ لیں صبح شام. اور یہ فیصلے کرواتی ہے, اور فیصلے بھی ایسے, اللہ اکبر, اور حیرت انگیز فیصلے, اور بہت عجیب فیصلے. زندگیوں کی تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں, اور زندگیوں کے خوشحالیاں اور راحتیں اور برکتیں زندگیوں میں شامل ہو جاتی ہیں. سوچیں, دعا لایا جبریل, زبان پہ ادائیگی ہوئی میرے حبیب, اور پھیلایا علی کرم اللہ وجہ الکریم. اب دیکھیں دعا کی ترتیب دیکھیں, اور پھر 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس دعا کو پڑھنے والے تونگر ہوئے ہیں, مالدار ہوئے ہیں. اس دعا کو پڑھنے والوں میں کی نسلوں میں رب نے برکتوں کے دروازے, وسعتوں کے دروازے, رحمتوں کے دروازے کھولے. تاریخ گواہ ہے, اور تاریخ بتا رہی ہے, اس دعا کو پڑھنے والے کا آج تک میں نے مایوس نہیں دیکھا, اور تاریخ نے مایوس نہیں دیکھا.